اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پی سی این کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے مینیفیسٹو کو لوگوں تک پہنچا سکیں. ظاہر ہے کہ جتنا وقت ہے اس میں ہم پورے مینیفیسٹو کو تو اس طریقے سے نہیں بات کر سکیں گے، لیکن اس کی ہائی لائٹس ضرور جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور پی سی این نے ہمیشہ جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے جس طریقے سے کام کیا ہے، میں علی بھائی آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جس طریقے سے آپ کی خدمات ہیں ماشاءاللہ. اور ہم سب جس طریقے سے کمیل بھائی نے مختلف لوگوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے کہا، خاص طور پر علماء کرام جو ہماری کیبنٹ میں یا ہماری جو پینل میں ہیں ان کے بارے میں کہ صرف آپ علماء کرام کے حوالے سے جانتے ہیں، اس طریقے سے شاید آپ علی بھائی کو کیا کہتے ہیں پی سی این کے حوالے سے شاید جانتے ہیں، لیکن ان کی دیگر بھی بہت ساری خدمات ہیں. بہرحال اب ہم اگر اپنے مینیفیسٹو کی ہائی لائٹس کے بارے میں بات کرنا چاہیں، مینیفیسٹو کے حوالے سے جو ہمارا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جماعت کو ہمیں اپنے ممبرز کے لیے اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ ہمارے ممبرز کو ہم اتنا اپلفٹ کر سکیں کہ پھر جس طریقے سے کھوجا کمیونٹی کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ اگر کھوجا کمیونٹی کا کوئی بھی ممبر تھوڑا سا بھی خوشحال ہوتا ہے تو اس کی چیریٹی، اس کا سوشل ورک کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کھوجا کمیونٹی کا ہر ممبر اپنے آپ کو اپلفٹ کرے، اور اس میں جو کھوجا جماعت کا رول ہے، جو ہمارا رول ہے، ہمارا ایک نرسری کا رول ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بہت کلیئر ہمیں اس بات کے لیے جو ہے وہ پابند کرتا ہے. اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن یہی ہے کہ ہمیں اپنے ممبر کے لیے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم اپنے ممبرز کو اوپر لے کر آتے ہیں تو پھر یہی ممبر ہمارا لارجر کمیونٹی میں بھی کام کرے گا، ہیومینٹی کے لیے بھی کام کرے گا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ یہ ثواب جاریہ جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. ہمارا ایمبٹ بہت کلیئر ہے کہ ہمارا ایمبٹ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ممبر کے لیے کام کرنا ہے اور اس کو اپلفٹ کرنا ہے. دوسری بات، ہمارا جو آبجیکٹو ہے بہت کلیئر ہے کہ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے وہ اس اصول پر ہے کہ جماعت کے پلیٹ فارم سے ہم کوئی بھی ڈیسیجن لیں، کوئی بھی انیشیٹو لیں، کوئی بھی ایفرٹس کرتے ہیں، کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، ہمیں اس بات کو مد نظر رکھ کر وہ ڈیسیجن لینا چاہیے کہ اس ڈیسیجن سے ہمارے ممبر کو ڈائریکٹ بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں اپنے ممبر کے لیے کام کرنا ہمارا مینڈیٹ ہے، اور ہمیں جو ہے یہ ہمارا ایک بالکل فاؤنڈیشن آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے. ہمارے مینیفیسٹو کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ، یا آبجیکٹیوز کہہ لیں، پلرز کہہ لیں، وہ وہی 7 پوائنٹس ہیں. وہی 7 پوائنٹس جس کا ہم پچھلے تقریباً 3 سال سے جو ہے وہ پرچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کلاس 4 آف دی کانسٹیٹیوشن آف کھوجا پیرائی شیعہ اثنا عشری جماعت، اور وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جب ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں ہم اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کریں گے. کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ بہت زیادہ کلیئر ہے، کلاس 4 آف دا کانسٹیٹیوشن، کہ ہمیں ممبرز کے لیے کام کرنا ہے. تو وہی 7 پوائنٹس کہ جو کانسٹیٹیوشن کے کلاس 4 میں ہیں وہی ہمارے پلرز آف دی مینیفیسٹو ہیں. اب مینیفیسٹو کے حوالے سے میں صرف 5 ایجنڈوں پہ بات کرنا چاہوں گا. جو ہمارے مینیفیسٹو میں ہم نے 5 ایجنڈے جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ تو اس سے آگے بھی مزید بہت ساری چیزیں ہیں. لوگوں نے بہت بات کی کہ اس میں بھی اس کو بھی ڈال دیں، اس کو بھی ڈال دیں، اس کو بھی ڈال دیں، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ اتنی بات کریں کہ جتنا انشاءاللہ ہم ڈیلیور کر سکیں. 5 ایجنڈا آئٹمز ہیں ہمارے. پہلا ایجنڈا آئٹم بہت کلیئر کہ اسٹریٹجک یوٹیلائزیشن آف جماعت فیسلٹیز. ہماری جماعت کی جو فیسلٹیز ہیں اس طریقے سے ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہوگی، اس طریقے سے ہمیں انشور کرنا ہوگا کہ ان فیسلٹیز کو جماعت کے ممبرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اچھا، یہ بات ہم 3 سال سے کہہ رہے ہیں، دوبارہ کہہ رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن سے
पहले जो है ना इस तरीके की चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंटेड है सारी चीजें। हमने पहला ईमेल जमात को जो किया है वो 20 दिसंबर 2021 को किया है, जिसमें हमने इन बातों की तरफ जमात की तवज्जो दिलाई है। 2021 का एजेंडा, 2021 की एजीएम प्रोसीडिंग्स आप देख लें, हमने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। 2022 की एजीएम प्रोसीडिंग्स आप देख लें, हमने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। 2023 की एजीएम प्रोसीडिंग्स ऑफ द एजीएम आप देख लें, हमने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। तो ये बात कहना कि ये इलेक्शन से पहले की जो है वो सिर्फ चीजें हैं, ऐसा नहीं है। हम 3 साल से इस बात को मुसलसल कह रहे हैं। मैं यहां पर खोजा पीराई शिया इस्ना शरी जमात के तमाम मेंबर्स को बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा और उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हम जो काम 3 साल अकेले कर रहे थे, 3 साल से अकेले कर रहे थे, 3 साल से ये कोशिश अपनी बात को पहुंचाने की कर रहे थे, उसका जो जवाब हमें मिलता था वो अनफॉर्चुनेटली ये था कि ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइम बट आइडियोलॉजी इज बियॉन्ड दैट। ये कोट अनकोट बात कर रहा हूं, ये रिपोर्ट में मौजूद है, ये जो मैं जुमला कह रहा हूं। अब सिंपल किस बात की फिर मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको? मुबारकबाद इस बात की दे रहा हूं कि जब हमने ये देखा, हमने ये सुना, तो हमें बहुत खुशी हुई कि जब ये सवालात हमारे पास आए, हम मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में भी आज गए, जब ये सवालात हमारे पास आए कि ये कैसे करेंगे, ये जो स्कूल के अंदर आप कह रहे हैं कि जी 37% सिर्फ खोजा है, मेंबर सिर्फ 37% है, कैसे करेंगे? हॉस्पिटल में आप कह रहे हैं 10% खोजा है, कैसे बढ़ाएंगे? अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, पहली बात तो ये आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो जमात की एजीएम की रिपोर्ट्स हैं, उसमें सारी चीजें मौजूद हैं कि इसमें क्या क्या किस किस तरीके से है। ये स्टैटिस्टिक्स हासिल करने में बड़ा टाइम लगा है, एक लेटर, उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद एजीएम के अंदर ये वाली बातें कही गई। जब एजीएम के अंदर ये बात कही गई, दूसरे साल मिनट में नहीं लिखी गई, दूसरे साल मिनट में जो है वो इस बात को आइडेंटिफाई किया गया कि प्लीज इसको लिख लें, तो तीसरे साल रिपोर्ट में जो है वो फिर इसको जो है वो लिखा गया, मिनट किया गया। बहरहाल, तो अब ये वाला जब सवाल हमारे पास आता है कि कैसे बढ़ाएंगे, या जब आजकल हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास इस तरीके की चीजें आती हैं कि नहीं हम मेंबर के लिए ये कर रहे हैं, मेंबर के लिए ये कर रहे हैं, मेंबर के लिए ये कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली मुझे हमारे तमाम मेंबर्स को मुबारकबाद देने का दिल करता है। हमारे तमाम मेंबर्स को, पूरी खोजा कम्युनिटी के मेंबर्स को इस बात की मुबारकबाद कि जो 3 साल से हम बात कर रहे थे, जिसका जवाब ये मिलता था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइम लेकिन आइडियोलॉजी इज बियॉन्ड दैट। हमें कम्युनिटी के लिए नहीं, हमें तो ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। आज ये जवाबात का चेंज होना ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपने इसको टॉक ऑफ द टाउन बनाया, आपने इसको अपने डिस्कशंस में किया, और यही जवाब आना, आप समझ जाएं इलेक्शन बहुत दूर है, 20 दिन बाकी हैं। इलेक्शन में किसको क्या वोट मिलते हैं, क्या है, कितना है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप ये जो मौकिफ है, ये वाली जो जवाबात हैं, ये जो चीजें हैं, ये आपकी जीत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सबसे पहले जो है वो आपको इस बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा। अच्छा, इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे करेंगे, हम जो पहला पॉइंट मैंने आपको कहा कि हॉस्पिटल के अंदर या एजुकेशन यानी फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क के अंदर हम अपनी जो परसेंटेज है या अपने मेंबर्स, हमारे मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट हों, इसको कैसे बढ़ाएंगे। तो फिर मैं यही करूंगा कि जैसे ही हमारे जहन में यह सवाल आएगा कि हम ये काम कैसे करेंगे, ये कामयाबी की पहली कुंजी है, पहली सीढ़ी है कि अगर हमारे जहन में यह सवाल आ गया, इसका मतलब हम उस माइंडसेट से चेंज हो गए कि जो हम कह रहे थे कि नहीं हमें तो क्या, अगर नहीं है लोग तो क्या हो गया, अब लोग आ ही नहीं रहे एडमिशन के लिए, हमें जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, हमें जो है वो सबके लिए काम करना है। आप जैसे ही हाव पे आ गए कि कैसे करना है, इसका मतलब आपका माइंडसेट चेंज हुआ, और यही हमारी रिक्वेस्ट थी 3 साल से। अगर आप लोग साथ ना देते तो जो 3 साल से हम बोल रहे हैं ये बात आज भी नहीं होती। आप लोगों के साथ देने की वजह से ये 10 दिन के अंदर हो गई हैं, जिसके लिए मैं फिर आपको मुबारकबाद दूंगा। अब हाउ की जो बात आ रही है उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। आमतौर पर अगर हम अपने इदारों के अंदर अपने इदारों को खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं, देखें फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क हमारा प्राउड है, फातिमिया हॉस्पिटल हमारा प्राउड है और हमारा प्राउड होना चाहिए। हम जितनी भी बातें करें एजुकेशन नेटवर्क को इंप्रूव करने की,
हॉस्पिटल को इंप्रूव करने की, इंटरनली बातें अपनी जगह पर, अगर बाहर कोई फातिमिया के हवाले से गलत बात करेगा हमें तकलीफ होगी, क्योंकि फातिमिया हमारा ब्रांड है, हमारा ब्रांड है और हमने सबने मिलकर इस ब्रांड को ऊपर करने के लिए काम करना है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमने इस ब्रांड को ऊपर करने के लिए काम करना है। क्यों कोई अपने जो है वो हम इस फैसिलिटीज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? मोटी मोटी अगर आप जो है वो इसके अंदर अपना उसकी वजह समझते हैं तो इसकी वजह यह है कि एक क्वालिटी और एक एक्सेसिबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं क्वालिटी पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा जो इस तरीके का एनवायरनमेंट है, जो एक अच्छे एनवायरनमेंट में हमारा काम हो रहा है और ये इलेक्शन हो रहे हैं, उसको उसी एनवायरनमेंट में चलने दें। क्वालिटी पे जब हम ये सोच लेंगे कि हमने जो है वो इसको इंप्रूव करना है तो इसके आसान से तरीके हैं। पहले हमें मालूम करना होगा कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं कि जिसमें जो है वो हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, और हमें बेसलेस बातों पर, सिर्फ किसी के बोलने पर उस पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट हम तमाम स्टेक होल्डर से बात करें, देखें। मिसाल के तौर पर हमें जो है वो स्कूल की क्वालिटी को ऊपर करने की बात करनी है, स्टेक होल्डर से बात करें, स्टूडेंट से बात करें, बेटा क्या आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, बेटा किस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। पेरेंट्स से बात करें, टीचर्स से बात करें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें, आइडेंटिफाई हो जाएंगी चीजें, फोकस करके उसको जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है। सेम गोज विद दी हॉस्पिटल। तो क्वालिटी को बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी एक्सेसिबिलिटी, हमारा परसेंटेज खुद ब खुद बढ़ेगा। मैं एक्सेसिबिलिटी पे बात करूंगा, क्योंकि क्वालिटी की बात करके थोड़ा सा मैं जो है वो उसको खराब करना नहीं चाह रहा। एक्सेसिबिलिटी में अगर हम फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क की बात करते हैं तो फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क में अगर हमने अपने एनरोलमेंट को बढ़ाना है, बहुत सारे तरीकेकार हो सकते हैं। मैं सिर्फ यहां पर 3 तरीकेकार को सिर्फ बात कर रहा हूं कि अगर ये 3 स्टेप भी लिए जाएं तो ये काफी हद तक बेहतर हो सकता है। नंबर 1, उन बच्चों को फातिमिया हॉस्पिटल, फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क या फातिमिया स्कूल के अंदर एडमिट करवाना कि जो आइडेंटिफाइड है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसी भी वजह से हमारे कबीले के ये अफराद थोड़ा सा नीचे रह गए हैं। क्या मतलब है इससे मेरा मतलब बहुत क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ लोगों को राशन देते हैं, जाहिर है कि हम ये समझते हैं कि ये राशन जिनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारी कम्युनिटी के, हमारे कबीले के वो अफराद हैं जो किसी भी वजह से ऊपर नहीं आ सके हैं। एज ए जमात हमारा काम है कि हम इनको ऊपर लाएं। सिंपल, हम सिर्फ एक राशन देकर उनको ऊपर नहीं ला सकते। हमें ये चीज देखनी होगी कि जिन 1000 फैमिली को, 2000 फैमिली को, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मैं खामखा उस तरीके की फिगर कोट नहीं करना चाह रहा कि जो मुझे मालूम नहीं है। जितने भी लोग हैं कि जिनको हम राशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जब हमें मालूम है कि ये तो वो लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के वो अफराद हैं कि जिनको जो है वो मदद की जरूरत है, क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम उनकी फैमिलीज में थोड़ा सा इन डेप्थ जाएं? थोड़ा सा इन डेप्थ जाने के बाद ये मालूम करें कि उनकी फैमिली में कुछ बच्चे भी होंगे, उनकी फैमिली के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, अगर वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर हम उनको किसी तरीके से इस बात को मेक श्योर करें कि वो हमारी फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क के अंदर आ जाएं, ये खुद एक जो है वो हो सकता है कि हम अपने इन बच्चों को, अब उनके साथ हम ये वाली बात ना करें कि हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे, 30% डिस्काउंट देंगे, 40% डिस्काउंट देंगे, 50% डिस्काउंट देंगे। ये वो बच्चे हैं जिनको हम खुद आइडेंटिफाइड कर चुके हैं कि ये वो फैमिलीज हैं कि खुदा ना करे 2 महीने कोविड की सूरत हाल हो गई, खाने पीने के इश्यूज हो गए इन फैमिलीज को। तो अब इनसे हम क्या बात करेंगे कि जी आपका बच्चा अगर स्कूल में आएगा तो 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। इनको तो ये कहना है खुदा के वास्ते स्कूल में आ जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमने इनको राशन देना है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पूरी फैमिली को ऊपर करना है। अगर इसका बच्चा पढ़ जाएगा, अच्छा ये बात क्या हम आज पहली दफा कर रहे हैं? अगेन 2021 का ईमेल चेक कर सकते हैं, ये बात उसमें भी लिखी हुई है। मैं अगर आपको फोकस करूं, थोड़ा सा आप मैनिफेस्टो पे फोकस करें, बाद में डिटेल्स में हम बाद में इसमें गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन आप फोकस करें ज्यादा मैनिफेस्टो। हम बिल्कुल मैनिफेस्टो पर है, मैं तरीकेकार बता रहा हूं कि इसमें अमल कैसे होगा। हम बिल्कुल मैनिफेस्टो पर ही हैं, तरीकेकार बता रहा हूं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसको अमल करना है तो कैसे अमल करेंगे, ठीक है। और वैसे भी हम तो अपने ही टाइम पर है ना तो हमने तो आपका टाइम बचाया है यार, तो उसमें तो इजाफी टाइम भी मिलना चाहिए। बहरहाल, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या ये चेक नहीं कर सकते हैं कि
جو ہمارے ڈراپ آؤٹس ہیں میٹرک کے بعد ہمارا ممبر اگر ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے اور ہمارے کالج میں نہیں آتا ہے, کیا ریزن ہے؟ کیا ان سے بات نہیں کی جا سکتی؟ بھائی آپ کنٹینیو کریں فاطمیہ کے ساتھ, کیا ایشوز ہیں ان ایشوز کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اگین آپ ڈراپ آؤٹس چیک کر سکتے ہیں. ڈراپ آؤٹس اگر ہماری جو کمیونٹی کے ہمارے ممبرز اگر ڈراپ آؤٹس ہیں ان کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں, فولڈ میں لے سکتے ہیں اور ہم اپنے نیٹ ورک کے اندر ان کو مزید آگے, چونکہ اب الحمدللہ ہم یونیورسٹی تک جانے کی بات کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہمارا ایک برانڈ بن رہا ہے. اب ہم نے اپنے بچوں کو وہاں تک لے بھی جانا ہے, اس وقت تک اس جگہ تک لے بھی جانا ہے یونیورسٹی تک. اگر ہمارا بچہ میٹرک کے بعد ہی ہمارے نیٹ ورک سے ہٹ جائے گا تو پھر ہماری یونیورسٹی جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم کن کو پڑھائیں گے؟ اسکول اور اس کے اندر جو ہے وہ 37% ممبرز ہیں, تو ہم یونیورسٹی کے اندر پہ کتنے لوگوں کو لے کے جائیں گے؟ ہمارے تو ممبر وہاں پر بالکل کم ہو جائیں گے. تو ہمیں اس بات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر مثال کے طور پر کچھ بچے ٹھیک ہے ہمارے پاس اسکول میں نہیں آئے, مختلف دوسرے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, کمیونٹی اسکولز میں. فار ایگزامپل گرین آئیلینڈ کے اندر بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل المرزا اسکول کے اندر ہمارے ممبرز کے بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں. کیا ان دونوں اسکولز کے پاس کالج نہیں ہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین اپنا کالج ہے. کیا ہم وہاں سے میٹرک کرنے والے ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو ممبرز ہیں, ان کو ٹیپ نہیں کر سکتے ہیں؟ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو بھی کالج کا حصہ بنائیں اور اس طریقے سے اپنے انرولمنٹ کو بڑھا سکتے ہیں. طریقہ کار بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر زیادہ طریقہ کار بولوں گا تو علی بھائی بولیں گے کہ بھائی آپ فوکس کریں اور جلدی جلدی کریں, تو اب میں تھوڑا سا جلدی جلدی کرتا ہوں. میڈیکل کے اندر ہم کس طریقے سے اس 10% کو آگے لا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو وہی, وہ لوگ کہ جو خدا نہ خاص اپنا کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں ہماری کمیونٹی کے, ایگزامپل وہی راشن والی, وہ تو آئیڈینٹیفائڈ ہے نا, آئیڈینٹیفائڈ کیسز ہیں. کیا ان کے لیے ہم کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر تمہاری فیملی کا کوئی بچہ, تمہاری فیملی کا کوئی ممبر بیمار ہوتا ہے, فاطمیہ ہاسپٹل کی حد تک کم از کم 1 سال کے لیے ہم آپ کو فلاں کارڈ دیتے ہیں کہ 1 سال تک تو آپ فاطمیہ ہاسپٹل میں آؤ گے, آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں ویلفیئر ڈیسک میں چلے جانا, فلاں اس کو فون کروا دو, فلاں یہ کر دو, اتنا % ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بھائی تمہارا تو کم سے کم سب فری ہے یار, تم تو یہ کرو یار خدا کے واسطے, کیونکہ آئیڈینٹیفائڈ ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ کس فیملی سے آ رہا ہے. ان کو کارڈ ایشو کر دیں. اگین یہ والی بات بھی 2021 سے کر رہے ہیں, اس ای میل میں موجود ہے. اب یہ ایک اور جو ہے, اچھا اب جب ہم یہ والی ساری باتیں کر رہے ہیں, ایک اور پوائنٹ مثال کے طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمارے جتنے بھی سینئر سٹیزنز ہیں, ہم اس کے لیے ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں. جو سینئر سٹیزنز ہیں ہماری کمیونٹی کے, انہوں نے ہماری کمیونٹی کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے. ہمیں پروان چڑھانے میں ان کے ایکسپیرینس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ دیکھیں اپنے اطراف میں, دیکھیں میری بات کو پلیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ کے سمجھ کے آرام سے اس کو سوچئے گا, اپنے اطراف میں دیکھیے گا. آپ دیکھیں ہمارے کتنے ایسے ممبرز ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, لائف بہت اچھی گزر رہی ہے, بہت اچھی لائف گزر رہی ہے, 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے بچوں کی مثال کے طور پر جو ہے وہ انکم ہے, ماں باپ بچے فیملی پوری رہ رہی ہے. یہ اچھی خاصی زندگی گزارنے والی فیملی پریشان ہو جاتی ہے جب اس کا باپ یا ماں بیمار ہو جاتا ہے. ایک دم سے یہ فیملی جس کی بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی مقروض ہو جاتی ہے. ہاسپٹل کے خرچے آپ کو معلوم ہے, اللہ سب کو اس وقت سے بچائے, لیکن ایک دم سے مقروض ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اپنے ان سینئر سٹیزنز کو جو بندہ کسی بھی وجہ سے افورڈ نہیں کر پا رہا ہے اور وہ ہمارے جو ہے وہ اس میں آتا ہے فاطمیہ میں, ہم کیا ان کو فری نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ مجھے بتائیں کیا مشکل ہے, کیا ایشو ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ فری کر دیں؟ اگر ہم اپنے سینئر سٹیزنز کو فری کر دیتے ہیں, اس سے ہم کتنی زیادہ فیملیز کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے کہ جن کی زندگی بالکل کلیئر گزر رہی ہے, صرف اس وجہ سے جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. میں آپ کو اس کے بارے میں آگے مزید بتاتا ہوں. ہیلتھ اسکریننگ ایک ہمارے مینیفیسٹو کے اندر ایک اور پوائنٹ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہیلتھ اسکریننگ جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں, ایک پرو ایکٹیو اپروچ لیتے ہوئے ہیلتھ اسکریننگ پہ ہم جا سکتے ہیں کہ جتنے بھی سینئر سٹیزن ہیں ان کا ایک ہیلتھ اسکریننگ ہو جائے. اس کے بعد کہ وہ بیمار ہوں اور اس کے بعد ہم اس پر خرچہ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان جو سینئر سٹیزن سے پہلے اسٹیپ کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ سینئر سٹیزنز کی ہم ہیلتھ اسکریننگ کریں, اور اگر ان کو کوئی ایسے پرابلمز آ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ بیمار ہوں اور اس میں خرچہ کیا جائے, ہم پہلے سے جو ہے وہ پرو ایکٹیو اپروچ کرتے ہوئے اس چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کریں. یہ خود ایک ہم اپنے مینیفیسٹو کا ہمارا حصہ ہے. اس کے بعد ہم ہیلتھ اسکریننگ
बिल्कुल उसी तरीके से चाह रहे हैं एक टारगेटेड डिजीज को, जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी ने, हमारे बड़ों ने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया कि हमने अपनी कम्युनिटी से तकरीबन थैलीसीमिया को खत्म कर दिया। एक बहुत अच्छा डिसीजन लेते हुए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे जितने बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस फैसले के, चूंकि ये फैसला कोई मुश्किल फैसला था, इतना आसान फैसला नहीं था। मुझे अंदाजा है कि शुरू में जब ये फैसला हुआ कितनी जो है वो इसके अंदर मुखालिफतें हुई, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी जो कम्युनिटी को है तकरीबन इस बीमारी से बचा चुके हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसको हम टारगेटेड स्क्रीन करके और उस पर जो है वो हम उस चीज को जो है वो खत्म कर सकते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल के मैंने कुछ चीजें बताई हैं जिसकी वजह से आप अपनी एक्सेसिबिलिटी, अपनी इस परसेंटेज को और अपने मेंबर्स की कि हमारे मेंबर्स इस हॉस्पिटल को ज्यादा इस्तेमाल करें, इस पे आप जो है वो आराम से अपने मेंबर्स को एंटरटेन कर सकते हैं। सवाल बहुत क्लियर सवाल आएगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैनिफेस्टो में लिख रहे हो इसको मुफ्त कर दोगे, सीनियर सिटीजन को ऐसा कर दोगे, पैसे कहां से आएंगे? सवाल तो बनता है पैसे कहां से आएंगे? देखिए पैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डोनर है अल्लाह ताला उनको जो है वो सलामत रखे, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, उनके रिस्क में इजाफा फरमाए। बहुत जनरस डोनर है हमारा, बहुत जनरस डोनर है हमारा। अभी मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट मेरी नजर से गुजरी। वो पोस्ट ये कहती है कि पिछले 3 सालों में मेंबर्स को सिर्फ डिस्काउंट की हद में 2.5 करोड़ रुपए का फायदा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी कितनी अच्छी बात है कि हमारे मेंबर्स को पिछले 3 सालों में सिर्फ डिस्काउंट की जो मद में 2.5 करोड़ रुपए का फायदा दिया गया है। मैं आपको इससे मजीद बात बताता हूं, ये बात कंप्लीट कर लूं मैं, इससे मजीद बात आपको बताता हूं कि 2021-2022 जुलाई 2021 से जून 2022 तक आपको मालूम है कि हमने नॉन मेंबर्स को सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर वेलफेयर की मद में कितने पैसे दिए? 2 करोड़ 54 लाख। मेंबर्स को 3 साल में 2.5 करोड़ रुपए दिए। सिर्फ 2021-22 में नॉन मेंबर्स को वेलफेयर की मद में 2 करोड़ 54 लाख। 3 साल 1 साल, पैसे बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मैं अपनी तरफ से घर से फिगर लेकर आ गया, मिनटेड है, मिनटेड है जी। मैं प्लीज आप मैनिफेस्टो को फोकस करें, इस पर तनकीद या उनके ने ये किया ये हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्लीज आप एजेंडा नंबर जो हमारा आपका जो है वो एजेंडा नंबर 2 सेंसस। हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमने वाकई अपनी कम्युनिटी के लिए फ्यूचर प्लानिंग करनी है, अगर हमने अपनी कम्युनिटी के लिए फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो विदाउट सेंसस तुक्केबाजी तो हो सकती है, तुक्केबाजी तो हो सकती है, सही तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग विदाउट सेंसस नहीं हो सकती। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर यह पॉइंट हमने बड़ा क्लियर लिखा है कि हमें इस बात पर बहुत तवज्जो देनी है और सबसे पहले अपनी कम्युनिटी का सेंसस करवाना है ताकि हम अपने रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली अलॉट कर सकें। क्योंकि अगर हमने अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, हमें अगर यह बात का फैसला करना है कि 15 साल के अंदर, अगले 15 सालों के अंदर हमें अपनी कम्युनिटी को कहां देखना है, तो जब तक सेंसस नहीं होगा हम नहीं कर सकेंगे। हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे कितने लोग एज ब्रैकेट में हैं, किस एज ब्रैकेट में हैं, हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे कितने लोग किस इनकम ब्रैकेट में हैं, हमें नहीं पता होगा कि एजुकेशन कितने लोगों की क्या है, और इसके बगैर हम कोई भी फैसला नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको छोटी सी जो बात की है कि हम तमाम सीनियर्स को फॉर एग्जाम्पल जो है वो ये करना चाह रहे हैं कि आप जो है वो उनको अगर वो बीमार होते हैं तो उनको आप जो है वो फ्री कर दें फातिमिया में। पहला सवाल आएगा ना, आपको पता है कितने सीनियर मेंबर्स होंगे? मेरे पास तो कुछ हमारी कम्युनिटी का था नहीं। मैं क्या करता, मैंने गूगल के साहब से पूछा कि पाकिस्तान के अंदर 65 ईयर्स से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। उन्होंने कहा गूगल साहब ने कि 4% है। मैंने उसको अपने उसमें रखा कि भाई 50,000 हमारे मेंबर हैं, 4% 2,000 बनता है। 2,000 मेंबर की मैं बात कर रहा हूं, और ये मुझे पता है कि हमारे 2,000 के 2,000 मेंबर ऐसे नहीं है कि जिसको मुफ्त इलाज की जरूरत है। कितने होंगे? 50%, 1,000। यानी हम टोटल मिला के 1,000 की बात कर रहे हैं, ज्यादा की कोई बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल तो अगर सेंसस नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे। एजेंडा आइटम नंबर 3, कोलैबोरेशन एफर्ट्स, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद अदर खोजा ऑर्गेनाइजेशन लोकली। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे कराची के अंदर दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेरे मेंबर के लिए काम कर रही हैं, पाक नाइट क्लिनिक
पंजवानी हॉस्पिटल, मासूमीन हॉस्पिटल, बज़्म अमाल, आवास ट्रस्ट, यूथ फाउंडेशन, सीनियर सिटीजन्स, HBT, इस्नाशरी बॉय स्काउट, नासरान स्काउट, CWO, ग्रीन आइलैंड, गर्ल्स गाइड, अल सैयदा, पता नहीं कितने मैं भूल गया हूंगा। अगर आप सोचें कि हम इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, कि जो तकरीबन इनमें से जो है ना वो हमारी खोजा ही ऑर्गेनाइजेशन, खोजा जो मेंबर हमारे वही चला रहे हैं, अगर हम इनके साथ हाथ मिलाते हैं, हम इनके साथ सिनर्जी के साथ काम करते हैं, इनको अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझते हैं, इनको इनके साथ कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, हाथ मिलाकर काम करते हैं, तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा अलग अलग फील्ड के अंदर। बहुत क्लियर है हमारा एजेंडा, हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट, कि इंशाल्लाह अगर हम आते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पर काम करेंगे लोकली, इसी तरीके से तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पे काम करेंगे ग्लोबली। अगर किसी वजह से हमारा कोई मेंबर, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बाहर काम करने के लिए जाता है, बाहर पढ़ने के लिए जाता है, तो जो ग्लोबली मुख्तलिफ, जो मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ फेडरेशन है वर्ल्ड फेडरेशन की, उनके साथ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो और उनके साथ मिलकर हम जो है वो। अब शायद मैं थोड़ा सा आपका माइक हिल गया तो मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को जी, एक्चुअली अब आपका टाइम जो है ना वो खत्म भी हो चुका है। मैं मजीद आपको 6 मिनट और दे रहा हूं। मैं 6 मिनट नहीं लूंगा, 3 ही मिनट लूंगा, मेरा काम भी खत्म हो गया है, लेकिन टाइम खत्म नहीं हुआ, सॉरी, टाइम खत्म नहीं हुआ है, टाइम, हाँ नहीं, एक सेकंड, टाइम खत्म नहीं हुआ है, टाइम मैं उतना ही लूंगा जो आपने कहा, लेकिन टाइम खत्म नहीं हुआ है, सॉरी, क्योंकि हमने 11 बजे शुरू करना था। ओके सर, सही है, टाइम खत्म नहीं हुआ है अभी, तो जो है वो तो टाइम पे तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन बहरहाल अच्छा। अब चूंकि अभी अली भाई मना कर रहे हैं ज्यादा बात नहीं करो, तो एजेंडा नंबर 4 और 5 को मैं मिला देता हूं। एजेंडा नंबर 4 और 5, एम्पावरमेंट टू विमेन एंड यूथ्स, मैंने अब दोनों को मिला दिया। विमेन की अलग बहुत सारी चीजें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, जो मैनिफेस्टो में मौजूद है, वो इंशाल्लाह कल हमारा मैनिफेस्टो जो है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा और जो है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इंशाल्लाह विमेन को और यूथ्स को एम्पावर किया जाए, उनको हम एम्पावर करने की कोशिश करेंगे, और मुख्तलिफ चीजें जो अब बतानी थी वो नहीं बता रहा हूं। अली भाई ने मना कर दिया, बोला नहीं बताना, तो अब नहीं बता रहा हूं। सिर्फ जो है वो इसके अंदर जो मैं बात करूंगा वो ये करूंगा कि हमारी ख्वाहिश होगी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए ये विमेन काउंसलर के जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा नहीं होते हैं। जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इन्हें मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बनाया जाए, इन्हें डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए। मैनेजिंग कमेटी जहां पर सारी चीजें डिसाइड होती हैं, डिस्कस होती हैं, मेन बॉडी है। हम इन विमेन्स को क्यों हिस्सा देने से जो है वो कतरा रहे हैं, हमें इसमें जो है वो क्या कहते हैं अमेंडमेंट करना होगा इंशाल्लाह, और हम अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे। सेम गोज विद द यूथ्स अगेन, हमारी ख्वाहिश यही होगी कि हम कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाएं जिससे हमारी मेन मैनेजिंग कमेटी के अंदर कम से कम यूथ्स की पार्टिसिपेशन और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन वो हो। 2 यूथ्स हमारी मैनेजिंग कमेटी के, जिस तरीके से विमेन काउंसिलर का, इसी तरीके से 2 यूथ्स भी जो हैं वो हमारी मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा हो। यूथ एम्पावरमेंट इसी तरीके से होगी। यूथ एम्पावरमेंट ये नहीं है कि हम डिसाइड करके और फिर जो है वो यूथ को बोले कि आप यूं कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हमें चाहिए कि हम उनको जो है वो अपने मैनेजिंग कमेटी में लाएं, वो देखें किस तरीके से काम करते हैं। और यूथ से मेरी मुराद जो है वो यही है कि फॉर एग्जांपल हम ये एक कानून में अमेंडमेंट करके ये ला सकते हैं कि अगर कम से कम 30 साल या 35 साल की कोई बार लगा दें कि इससे कम एज के हमारे पास जो है वो 2 मेंबर मैनेजिंग कमेटी में होंगे। ये कुछ चीजें थी कि जो हम चाह रहे थे। हमारी मैनिफेस्टो के अंदर ये 5 एजेंडा आइटम थे जिनको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की। मैं जो है वो अगेन इंशाल्लाह हमारी मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, उसमें भी हम अपने एजेंडे को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो तौफीक दे कि जो बातें हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अगर हम आते हैं और अगर हमें मौका मिलता है तो हम अपनी इन बातों को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया हमारा साथ देने का। रिक्वेस्ट यही होगी, 12 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो आप मेंबर्स पैनल को वोट देकर
अपने आप को कामयाब बनाइएगा। बहुत शुक्रिया।